Welcome students. Welcome to the lecture number 16 of chapter Computer Networks. So the topic that we are going to start today is basically, the first topic is basically the web page. Okay, as you all know that web page is a page that is designed by using the HTML language, okay, and a special application, that is web browser, is required to view the web page. Okay, so web page is basically an electronic document designed using HTML, and it displays the information in the textual or the graphical form. Okay, so whenever you open a website, so the first you will see the home page, home web page of that website. Okay, and as you know that website is basically a collection of multiple web pages. So in order to create a web page, we require a language named as HTML, and the web page is basically used to display the textual as well as the graphical form information. Okay, it may also contain downloadable data files, audio files or video files, traversal from one web page to another web page. Okay, so in your web page there may be some downloadable files, okay, some audio file or some video files is that, and you can also jump from one web page to another web page through a hyperlink. Okay, so suppose if you open a web page, right, and suppose somewhere in that web page there is a word written as sports, and when you bring the mouse pointer to that word, a hand shaped icon appears, and when you click on it, then the sports page, the sports web page appears in your screen. So it means your home page and the sports web page both are linked with each other, and this linking is done by hyperlinks. Okay, so it may also contain downloadable data files, audio or video files, and traversal from one web page to another web page is possible through basically from hyperlinks. Okay, so now we know that web page is basically used to display information to the user either in the textual or in the graphical forms. Okay, so now we basically classify the web page into two types of web pages. Okay, the first one is basically the static web page. Static web page means whenever we open that web page, we always get the same kind of information every time. So a web page which displays the same kind of information whenever a user visits it is known as a static web page. A static web page generally has .htm or .html as extension. Okay, so a static means fixed, right? So whenever you open that web page, you will always see the same kind of information over there. Now the second category of the web page is basically the dynamic web page. Okay, so dynamic means which changes, right? So an interactive web page is basically a dynamic web page. A dynamic web page uses scripting language to display changing content on the web page. So as the name suggests, in the static web page, the content and information remains the same. But in case of the dynamic web pages, the content can be changed. Okay? So in order to change the content, a scripting language is used in the dynamic web pages. Okay, so that's why the static web pages has the extension .htm or .html in case of the static web page, but in case of the dynamic web page, the extension of that dynamic web page file is not .html or .html. No, because in the dynamic web page we use the scripting language for managing the changing content. Okay, for managing those content which changes every time we open the web page. Okay, so such dynamic web pages have the extension that is .php, .asp or .jsp as the extension. Okay, so now we know that the web pages are classified into two types of web pages. First one is the static and another one is basically the dynamic.
Okay, so as when we discuss about the dynamic, there comes a word that is called as a scripting language. Okay, and scripting language is very important because with the help of this scripting language, we set those content in the web page which changes as per the time. Okay, so what about the scripting language? A scripting language is basically a programming language which can be embedded or integrated with other languages. Suppose we use a scripting language like ASP. Okay, ASP basically stands for Active Server Pages, and we basically embed the coding of that ASP in the HTML. Okay, so a scripting language that is ASP is a programming language which can be embedded or integrated with other languages like HTML language. So some of the most widely used scripting languages are JavaScript, VBScript, PHP, Perl, Python, Ruby and ASP, and they have been used extensively to create dynamic web pages. Okay, so as you see that over here Python is also given, so Python can also be used as a scripting language. Okay, so dynamic web pages supports two types of scripting, right? We have seen that dynamic web pages means some scripting languages must be included in it. Okay, then only that web page will become the dynamic web page. So now we basically divide the scripting languages. We have seen that there are various scripting languages, but we divide the scripting languages into two types of categories. The first one is the client-side scripting language. Okay, so what is it? Client-side scripting language. On some web pages, the content change in response to an action done by the user. Such pages are client-side scripting. In this technology, the content is generated on the user local computer. VBScript and JavaScript are the example of client-side scripting language. तो देखिए इसमें क्या चीज बोली गई है हमें यहाँ पे कि क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, इन लैंग्वेज में जैसे सपोज आपने एक वेब पेज डिजाइन किया, HTML को यूज करके डिजाइन किया आपने, और उस वेब पेज में आपने एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के द्वारा कुछ कोडिंग भी डाल दी, एंड सपोज वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स आपने उस वेब पेज में डाले वो आपने मान लीजिए क्लाइंट साइड वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करी है. अब होगा क्या, क्लाइंट साइड वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करने से क्या होगा कि जब हमारा ये कोड बेसिकली क्लाइंट साइड में रन होगा, ठीक है, जब यूजर अपनी मशीन में उसको वेब पेज को खोलेगा तो उसमें जो भी बेसिकली कोडिंग वाला जो प्रोसेस है वो सारा का सारा क्लाइंट की मशीन पे रन होगा. ठीक है, यानी कि अगर मैंने अपने कंप्यूटर में कोई वेबसाइट खोल रहा हूं, जिस वेबसाइट के वेब पेजेस में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज हो रखी है, तो क्या होगा, वो वेब पेज मेरे वेबसाइट कंप्यूटर में ओपन होगा, और जब मैं उसमें कोई भी ऐसा एक्शन करूंगा जिससे उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वाला प्रोग्राम रन हो, तो वो कहां पे रन होगा, वो मेरी कंप्यूटर की मशीन में रन होगा. ठीक है, सो यानी कि वो रिसोर्स किसका यूज करेगा, मेरे कंप्यूटर का रिसोर्स यूज करेगा. So such pages uses client-side scripting, and in this technology the content is generated on the user's local computer. ठीक है जी. So यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं. फर्स्ट वन इज द VBScript and the other one is the JavaScript. These are the two scripting language which comes under the category of client-side scripting language. Now let's move to the next one, is the next category, that is the server-side scripting language. So some web pages uses application running on the servers to generate the web contents. Okay, such pages use server side scripting language. So in suppose मान लीजिए कुछ ऐसे वेब पेजेस हैं जिन्हें अपने कंटेंट को जब जनरेट करवाना होता है तो उन्हें सर्वर साइड की एप्लीकेशंस को यूज करना पड़ता है. सो सम वेब पेजेस यूजेस एप्लीकेशन रनिंग ऑन द सर्वर्स टू जनरेट द वेब कंटेंट. So such web pages use server side scripting language. So web pages display the current time and date, forum, submission form, शॉपिंग कार्ट्स एक्सेट्रा यूज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. ठीक है जी. सो सिंपल सी बात है कि भाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी दो टाइप में डिवाइड हो चुकी है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड. जब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वाला कोड क्लाइंट की मशीन में रन होगा तो वो कब रन होगा, अगर वेब पेज में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वाला कोड डाला होगा.
और अगर सपोज वो कोड जो आपने अपने वेब पेज में डाला, अगर वो उसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज की होगी तो वो कोड सर्वर साइड में ही रन होगा, बिकॉज उसको जो रिजल्ट चाहिए दैट रिजल्ट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सर्वर साइड. ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक ASP stands for Active Server Pages, JSP है Java Server Pages, PHP are examples of server side scripting language. तो पेपर में आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आ सकता है कि सपोज दे हैव गिवन यू 4-5 लैंग्वेजेस एंड आउट ऑफ दोस 4-5 लैंग्वेजेस दे टोल्ड यू कि ओके इनमें से बताइए विच वन आर द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और विच वन आर द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. सो जनरली इसमें VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट और ASP JSP ये दोनों ज्यादातर इस्तेमाल होती है. Now let's move to the next topic, that is a web browser. As all of you know that what is a web browser, like Internet Explorer is a web browser, Google Chrome is a web browser, Mozilla Firefox is a web browser. So what is basically a web browser? Web browser is a software programs to navigate the web pages on the internet. Okay, because if you want to open any web page in your computer, so for what you have to do first you are going to open the web browser first. Okay, suppose if I told you that okay open the website of our school, so what you will do, we will first open the Google Chrome, and once the Google Chrome application opens, then you write the web domain name of the school, that is www.shadleypublicschool.com, like this. Okay, so first you have to open the web browser. So web browser is basically a software program through which we can navigate or we can access the web pages on the internet. Okay, what this browser do, why we need this browser? Because web browser interprets the coding language of the web page and display it in graphic form. As you all have done the HTML, right? So you know that when you write the code of the HTML, you will simply use the tags for design, for writing the web page code using the HTML tag. But when you run that file, in spite of those tags, you will get the information in a particular format. Okay, so who will done this translation? You have written a HTML file and using tags for everything, and when you run that file and you will see the output of that file in the web browser, at that time there is no tags appear on it. Whatever content you have written, that content is shown in the web page. So who done this translation of your HTML tags code into the web page form? So there is a web browser. So web browser interprets the coding language, that is your HTML or ASP, JSP, whatever be the coding language of the web page, and display it in graphic form. Okay, so internet works on client server model. We all know that internet basically works on the client server model, and we all are who are accessing the internet services, we all are the clients. Okay, so internet works on client server model. A web browser is a client. Okay, a web browser क्या है? एक client है. Because अब suppose मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा अपना वेब ब्राउजर ओपन किया, लाइक गूगल क्रोम ओपन किया, एंड उसके ऊपर लिखा www.cbsc.nic.in, and when I press enter, so my request is sent somewhere. Okay, और सपोज मेरी रिक्वेस्ट कहां गई, वो CBSE के वेब सर्वर के पास गई. CBSE के वेब सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और मेरे को CBSE का होम पेज वाला वेब पेज मेरी तरफ भेजा, एंड नाउ जब वो पेज मेरे पास आया तो मेरे वेब ब्राउजर ने उसको इंटरप्रेट किया और फिर उसको ग्राफिकल फॉर्म में मेरे वेब स्क्रीन पर शो कर दिया. सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर. इंटरनेट वर्क्स ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल. अ वेब ब्राउजर इज बेसिकली अ क्लाइंट which requests the information from the web server. The web server sends the information back to the client. The web address of the web page written on the address bar tells the web browser which page to access. जैसे सपोज अगर मैंने ऊपर लिखा www.cbsc.nic.in, सो जब मैंने ये वेब एड्रेस पे लिखा तो इसको देखकर मेरे वेब ब्राउजर को क्या समझ में आ गया कि भैया मैं जो है CBSE का cbsc.nic.in का होम पेज देखना चाहता हूं. ओके, सो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. A thing is that is basically the URL. URL stands for Uniform Resource Locator.
So now what is this? Basically a URL. Web address of the web page written on the address bar of the browser is known as the URL. Okay, as I told you that when I want to open a website, right? So what I will do, I will open the Google Chrome, and in the Google Chrome I'm going to write that www, that at the address bar I'm going to write www.cbsc.nic.in. Okay, so what is this? www.cbsc.nic.in. This whole complete thing is basically a URL. Okay, this whole complete thing is basically a URL. अब ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब क्यों है? क्योंकि भैया ये जो नाम जो है ये किसको मिला हुआ है? दैट नेम इज गिवन ओनली टू द वेब सर्वर ऑफ द सीबीएसई. ठीक है, सो इस नाम को जब मैं अपने वेब ब्राउजर पे टाइप करूंगा, वेब जहां पे एड्रेस बार पे जब मैं टाइप करूंगा, इस URL को मैं टाइप करूंगा, तो मेरा वेब ब्राउजर उस पर्टिकुलर जगह की तरफ पॉइंट करेगा या उस जगह पे ही मेरी रिक्वेस्ट भेजेगा. सो वेब एड्रेस ऑफ द वेब पेज रिटन ऑन द एड्रेस बार of the browser is known as the URL, that is Uniform Resource Locator. A URL is a formatted text string used to identify a network resource on the internet. ठीक है, तो जब कभी भी आपको कोई भी वेबसाइट खोलनी होती है तो आप क्या करते हो? एड्रेस बार में जाके क्या लिखते हो? उसका URL लिखते हो. ठीक है जी, जब कभी भी आप कोई वेबसाइट ओपन करोगे तो एड्रेस बार में जाके आप क्या लिखोगे? यू आर गोइंग टू राइट द URL ऑफ द page of the website. Okay, network resources are files that can be plain web pages, text document, graphical, downloadable files, service or program. Network resources can be anything. Okay, so every network resource on the web has a unique URL. So यहां पे हमारे पास एक बात हो रही थी, that is called as a network resource की. तो यहां पे लिखा था a URL is a formatted text string used to identify a network resource on the internet. और हमने बोला ये नेटवर्क रिसोर्स क्या हो सकता है? ये नेटवर्क रिसोर्स कोई फाइल हो सकती है, प्लेन वेब पेज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाली फाइल, ग्राफिक्स फाइल हो सकती है, डाउनलोडेबल फाइल हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और हर नेटवर्क रिसोर्स का, जैसे हम यहां पे बात हो गई है कि हमें नेटवर्क रिसोर्स इंटरनेट पे खोजना होता है, उसके लिए URL होता है. और हमने ये बोला कि नेटवर्क रिसोर्स में कुछ भी हो सकता है, और हर नेटवर्क रिसोर्स का क्या होगा? एवरी नेटवर्क रिसोर्स ऑन द वेब हैज अ यूनिक URL. ठीक है जी. अच्छा, द URL टेक्स्ट स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पहला होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल. ठीक है, पहला क्या होता है? दैट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल. नेटवर्क प्रोटोकॉल के बाद क्या होता है? होस्ट नेम और एड्रेस. फिर आता है फाइल और रिसोर्स लोकेशन. ये 3 चीजें होती हैं इसके अंदर. सो जैसे मैंने लिखा है, द टेक्स्ट स्ट्रिंग ऑफ अ URL हैज द फॉलोइंग फॉर्मेट, दैट इज प्रोटोकॉल, सर्वर पाथ, सर्वर स्लैश पाथ स्लैश रिसोर्स. सो चलिए मैं इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझा देता हूं कि क्या मतलब हुआ इसका. तो मैं पहले यहां पे गूगल क्रोम पे जाता हूं. गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूं मैं. चलिए, जैसे मेरा अब यहाँ पे ब्राउजर खुल गया है, गूगल क्रोम खुल गया. मैंने लिखा यहाँ पे इस जगह पे, ये दिस इज माय एड्रेस बार. तो यहाँ पे मैं लिखता हूं www.cbsc.nic.in. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? ये cbsc.nic.in लिखा और एंटर मारा. ठीक है जी. अब एंटर मारने पर देखो मेरे सामने ये पेज खुल गया. हमारे सामने लिखा है क्लिक फॉर रिजल्ट और क्लिक फॉर वेबसाइट. सो सपोज मान लो मैंने क्लिक फॉर वेबसाइट किया. सो नाउ अब आप यहां देखेंगे, यहाँ पे पूरा कुछ लिखा हुआ आ गया यहाँ पे. अब मैं ये पूरा जो है इसको कॉपी कर लेता हूं. ये जो भी लिखा हुआ मेरे सामने, इसको मैंने कॉपी किया और एक नोटपैड ओपन करके इसमें पेस्ट कर देता हूं अभी. ठीक है, अब चलिए, ये मैंने यहां से कॉपी किया था और कॉपी करके मैंने इस नोटपैड पे पेस्ट कर दिया है इसका पूरा. अब जरा ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ आ रहा है.
तो यहाँ पे ये जो HTTP है, अब सपोज मान लो यहाँ पे क्या है, हमें जो उसके सिंटेक्स से मिलाना था यहाँ पे। अब देखो हमें जो वहां पे सिंटेक्स दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली जरा इसको देखते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा मैं इसका साइज छोटा कर सकता हूं ताकि मैं आपको सारी चीजों के साथ कंपेयर करवा दूं। देखो सब पहली चीज यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो था प्रोटोकॉल, ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। अब जब हम नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे तो देखो प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या है, ये HTTP जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सो ये HTTP जो लिखा होता है ये है प्रोटोकॉल। अब आजकल के टाइम में ना आप देखोगे कुछ वेबसाइट है जिनमें HTTPS लिखा हुआ है, तो S मतलब होता है सिक्योर, ठीक है, S मतलब क्या हो गया, सिक्योर। और जहां अब बेसिकली जो पुरानी वेबसाइट है वो HTTP ही लेके चल रही है, सो वो वेबसाइट कुछ खास सिक्योर नहीं होती हैं। लेकिन अब जो कुछ जैसे अब कई वेबसाइट जो है जिनमें HTTPS लिखा होता है तो वो सेफ और सिक्योर होती है वेबसाइट। अभी अब अगर आप देखो ध्यान से, मैंने ये CBSE वाली वेबसाइट खोली, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नॉट सिक्योर। क्यों लिखा हुआ नॉट सिक्योर, क्योंकि ये HTTP वाला प्रोटोकॉल यूज कर रही है, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज होस्ट नेम और एड्रेस। तो होस्ट नेम कौन है इसका, cbse.nic.in, ये इसका होस्ट नेम है या डोमेन नेम कह लो, जो भी है हमारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है फाइल और रिसोर्स लोकेशन। तो अब मुझे देखो यहाँ पे क्या पता लग रहा है, देखो अब ध्यान से देखना, ये लाइन से ये मुझे पता लग रहा है कि भी प्रोटोकॉल तो यूज हो रहा है HTTP, अच्छा, और cbse.nic.in का जो वेब सर्वर है, ठीक है, cbse.nic.in का जो वेब सर्वर है, उस वेब सर्वर के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है, न्यूज साइट, ठीक है, एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है, न्यूज साइट। और उस न्यूज साइट फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम क्या है, index.html, ठीक है, उसके अंदर एक फाइल है जिसका नाम क्या है, index.html। और हमारे सामने ये जो फाइल खुली हुई है, ये कौन सी फाइल है, ये फाइल हमारे सामने जो खुली है ये है index.html, ठीक है। तो देखो उसने पूरा पाथ बता दिया ना कि भैया ये प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, और cbse.nic.in के सर्वर में, वेब सर्वर में जो इंडेक्स, ये अपना न्यूज साइट नाम का जो फोल्डर है, उसके अंदर एक वेब पेज है जिसका नाम है index.html, जो अभी आपके सामने ओपन हो रखा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो भी वेब पेज हमारे सामने खुल रहा है उसका पूरा, एक तरह से कहते हैं ना, उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसका पूरा नाम जो है, पूरा पाथ वाथ सब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका पूरा पाथ हमें ऐसे ही दिख जाता है कि भैया वो फाइल किधर कहां पे पड़ी हुई है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द URL। तो तभी देखो यहाँ पे आ रहा ना, प्रोटोकॉल हो गया हमारा HTTP, सर्वर हो गया cbse.nic.in, और path/resource का मतलब, पाथ मतलब उसमें न्यूज साइट नाम का फोल्डर था, और फोल्डर के अंदर जो हमारी index.html नाम का रिसोर्स फाइल थी जो हम देख रहे थे वहां पे। तो हमने बोला ना कि नेटवर्क रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, एक फाइल भी हो सकती है, एक वेब पेज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। सो आई थिंक URL का कंसेप्ट यू इज क्लियर नाउ। Now next we move to the network protocol. So network protocol substring identifies the protocol to be used to access the network resource. तो जैसे अभी हमने CBSE की वेबसाइट खोली तो याद है हमने उसमें आगे, सबसे आगे हमें क्या दिखाई दे, we saw HTTP. So HTTP is basically the protocol that is used for accessing the CBSE website. So these strings are short name, क्योंकि HTTP देखो short name था, followed by 3 characters. कौन से 3 characters हैं, एक तो कोलन एंड देन फिर ये डबल स्लैश। अगर आप देखो जब मैंने उसका पाथ कॉपी किया था, ये देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ HTTP लिखा है, फिर कोलन और फिर डबल स्लैश लिखा हुआ ना, तो हर प्रोटोकॉल के बाद, प्रोटोकॉल के नाम के बाद ये लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। सो वही बोला हुआ है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है, दीज स्ट्रिंग्स आर शॉर्ट नेम्स, दैट इज HTTP शॉर्ट नेम है, फॉलोड बाय 3 कैरेक्टर्स, दैट इज कोलन एंड स्लैश। अदर एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोकॉल इंक्लूड HTTP एक प्रोटोकॉल है, गोफर एक प्रोटोकॉल है, FTP, मेल टू, दीज आर सम प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारे URL होस्ट और सर्वर। अब देखो वेब ब्राउजर की हमने बात कर ली जो कि हमारे सिस्टम में अंदर मौजूद है। हमने बोला जब हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं
तो हम अपने वेब ब्राउजर में उस वेबसाइट का यूआरएल लिखते हैं, ठीक है। जब हम उसका डोमेन नेम लिखते हैं, एंटर मारते हैं, तो जो पेज हमारे सामने खुलता है वो और ऊपर क्या आ जाता है, उसका पूरा यूआरएल आ जाता है। अच्छा, लेकिन ये जो पेज हमारे सामने खुला है, ये हमें मिला कहां से? ऑब्वियसली मेरा जो वेब ब्राउजर है वो क्लाइंट है, और जब मैंने उसमें लिखा www.cbsc.nic.in और लिख के जब मैंने एंटर मारा तो मेरी रिक्वेस्ट कहां गई? मेरी रिक्वेस्ट गई मेरे सीबीएसई के वेब सर्वर पे, ठीक है, या वो यूआरएल होस्ट कह लो उसको एक तरह से। सो होस्ट नेम और एड्रेस सबस्ट्रिंग आइडेंटिफाइज द होस्ट और सर्वर दैट होल्ड द रिसोर्स। ऑब्वियसली जब मैं लिखूंगा www.cbsc.nic.in तभी पता लगेगा ना कि भाई इस वाले वेब सर्वर के पास भेजना है। सो ये जो नेम है ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि सर्वर है कौन सा। होस्ट नेम्स आर समटाइम्स कॉल्ड एज अ डोमेन नेम। तो ये जो cbsc.nic.in है ये डोमेन नेम भी कहते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे www.shadleypublicschool.com इज अ डोमेन नेम, ठीक है। सो ऑब्वियसली क्या होता है कि जब भी कोई बंदा अपनी वेबसाइट बनाता है, सो बनाने के बाद उसको अपनी वेबसाइट का ना एक डोमेन नेम लेना पड़ता है। बिना डोमेन नेम के कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट को नेट पे डाल ही नहीं सकता। कैसे, क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि देखो, अगर इंटरनेट पे डालने का मकसद क्या है अपनी वेबसाइट को, कि कोई भी बंदा उस वेबसाइट को कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सके। लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी का काम तो तभी हो पाएगा ना जब हम अपनी वेबसाइट को कुछ नाम देंगे। क्योंकि जब कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो पहले वो अपने सिस्टम पे वेब ब्राउजर खोलेगा, और वेब ब्राउजर खोलने के बाद वो वेब एड्रेस बार पे कुछ तो लिखेगा। तो वो जो लिखेगा वो क्या होगा? वो होता है हमारा डोमेन नेम। तो जैसे www.shadleypublicschool.com ये क्या है? एक डोमेन नेम है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी कोई बंदा अपनी वेबसाइट बनाता है तो अगर वो उसको इंटरनेट पे डालना चाहता है तो उसको क्या लेना पड़ता है? पहले डोमेन नेम लेना पड़ता है। डोमेन नेम लेगा तभी कोई भी बंदा अपने एड्रेस बार पे उस डोमेन नेम को लिखकर एंटर मारकर उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। आगे देखें। सो होस्ट नेम्स आर मैप्ड इनटू न्यूमेरिक आईपी एड्रेस। द डोमेन नेम www.shadley.publicschool.com may have suppose IP address 192.100.1। अब देखो होता क्या है कि डोमेन नेम और ये पूरा किस्सा क्या है मैं आपको समझा देता हूं पूरा, कि डोमेन नेम और ये आईपी एड्रेस इसका मतलब क्या है। सो इसको समझने के लिए लेट्स एक्सप्लेन यू विद एन कंप्लीट डायग्राम। जस्ट वेट, अभी ओपन हो रहा है MS Paint। नाउ MS Paint इज ओपन। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द एंटायर प्रोसीजर फॉर इट, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि आपने क्या करा, आप लोगों ने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। आप लोगों ने क्या करा, आपने सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर पर्सन ने सपोज अपना कोई बिजनेस करना है या कुछ भी काम करना है, ठीक है, और उस काम को करने के लिए नाउ ही वांट्स टू मेक अ वेबसाइट, ठीक। अच्छा, अब उसने वेबसाइट बनानी थी। सो अब हुआ क्या कि उसने अपने किसी फ्रेंड से पूछा कि भाई मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वेबसाइट बनवानी है, क्या करूं? तो उसने बोला कि भाई किसी वेबसाइट डिजाइनर को पकड़, उससे अपनी वेबसाइट डिजाइन करवा, फिर डोमेन नेम ले और ये सब काम कर। तो मैंने कहा कि भाई, तो उस बंदे ने कहा कि यार भाई मुझे तो ये वेबसाइट डिजाइनर पता नहीं कहां पे किधर है, और डोमेन नेम कहां से लूं कैसे लूं पता नहीं मुझे। तो उससे किसी ने बोला कि यार आजकल एक कंपनी चल रही है जिसका नाम है GoDaddy, तो उस कंपनी को तू कांटेक्ट कर, वो तेरी वेबसाइट बनवाएंगे, डोमेन नेम सब में मदद कर देंगे तेरी। उसने कहा अच्छा जी। अब उसने उस कंपनी को कांटेक्ट किया तो कंपनी वालों ने कहा ठीक है सर, हम सारा कुछ कर देंगे। अब उन्होंने उससे ऑब्वियसली अपने चार्जेस बताए, फिर उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उनकी एक वेबसाइट पूरी डिजाइन कर दी, और वेबसाइट डिजाइन करके उसको उसके सिस्टम पे चला के दिखाई उन्होंने, देखो कितनी बढ़िया चल रही है। अच्छा, अब वो बंदा सेटिस्फाई हो गया, हाँ जी मेरी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। सो नाउ वेबसाइट बनाने के GoDaddy वालों ने कुछ चार्जेस ले लिए उसके बाद। अच्छा, अब उन्होंने बोला देखो सर अभी आपकी जो वेबसाइट है वो हमने अपने कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर में तो चल रही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये वेबसाइट इंटरनेट पे लोग भी देखें तो आपको सबसे पहले अपनी इस वेबसाइट के लिए क्या लेना पड़ेगा? एक डोमेन नेम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज मान लो ये
जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि ये उस कंपनी का एक वेब सर्वर है, ठीक है। सपोज ये एग्जाम्पल ले लो कि भाई दिस इज बेसिकली द वेब सर्वर ऑफ GoDaddy कंपनी, ठीक है। सो आपने अपनी वेबसाइट दिखाई, उन्होंने आपके लिए वेबसाइट बनाई, आप वेबसाइट से सेटिस्फाइड थे। नाउ द सेकंड स्टेप इज दैट उन्होंने बोला कि फर्स्ट यू हैव टू टेक द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। सो GoDaddy वालों ने आपके जो भी आपसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, तो सपोज आपने बोला कि ठीक है भाई मुझे मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम रख दो आयुष फिटनेस एकेडमी, ठीक है जी। तो उन्होंने बेसिकली ये नाम रजिस्टर के लिए दिया डोमेन नेम में, और ये नाम रजिस्टर्ड हो भी गया। अब उन्होंने क्या किया कि जो आपकी वेबसाइट है वो वेबसाइट अपने इस वेब सर्वर पे डाल दी, ठीक है। और आपकी वेबसाइट का नाम भी आपको पता ही है क्या हो रखा है। अब आपकी वेबसाइट जो है उसका नाम है www.ayushfitnessacademy.com, ठीक है। सो जो वेबसाइट है उसका नाम हो रखा है दैट इज ayushfitnessacademy.com, ठीक है। थोड़ा सा इसका बड़ा कर देते हैं ताकि आराम से आ सके। चलिए जी। सो अब आपकी जो वेबसाइट है वो GoDaddy वालों के वेब सर्वर में आ भी गई, और ये आपको क्या मिल गया, ये जो हमने लिखा है www.ayushfitnessacademy.com, ये क्या है, ये आपका डोमेन नेम है, ठीक है। ये आपका डोमेन नेम हो गया। तो चलो जी, अब GoDaddy वालों के वेब सर्वर के अंदर आपकी वेबसाइट डल भी गई, और आपकी वेबसाइट को एक यूनिक नेम मिल गया, एक डोमेन नेम मिल गया, दैट इज कॉल्ड एज द www.ayushfitnessacademy.com, ठीक है। अब होता क्या है कि सपोज नाउ अब आप फटाफट अपने घर गए, घर जाके आपने बोला, अपना सिस्टम ऑन किया, और सिस्टम ऑन करके आपने क्या करा, अपने कंप्यूटर के अंदर आपने जो जैसे सिस्टम ऑन किया, अब आपने कहा चलो जी अब जरा मैं देखूं कि मेरी वेबसाइट अब अपीयर होती कि नहीं होती। तो आपने अपने कंप्यूटर में गए और जाके आपने अब वेब ब्राउजर ओपन किया। आपने क्या करा, अपने कंप्यूटर में गए और अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउजर ओपन किया, और जैसे वेब ब्राउजर आपने ओपन किया तो आपने उस वेब ब्राउजर पे जाके लिख दिया दैट इज www.ayushfitnessacademy.com, ठीक है। तो आपने ये डोमेन नेम वहां लिख दिया। अच्छा, होगा क्या कि जैसे ही आपने ये लिखा, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहां पे कि आपका एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, ठीक है। अब सपोज मान लो आपकी ये रिक्वेस्ट जो है ये कहां जाएगी, ये आपके ISP के पास जाएगी, ठीक है, जो कि इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब सपोज क्या हुआ कि आपके ISP के पास या जो भी आपका डिवाइस राउटर वाउटर जो लगा है उनमें से किसी के पास जाएगी। अच्छा, अब ये रिक्वेस्ट कहां चली गई, सपोज मान लो ISP के पास चली गई यहां पे। अब ISP के पास ना एक पूरा टेबल होता है, ठीक है, जिसमें सारी वेबसाइट्स के जो है लिस्ट दे रखी है। ISP सपोज मान लो या आपका जो आपके वहां पे डिवाइस जो लगा होगा, राउटर लगा होगा, उसके पास ये पूरी लिस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है उसने आपके पास क्या लगा रखा है, एक राउटर डिवाइस लगा रखा है ना आपके सिस्टम पे। तो जब आपने लिखा तो ये रिक्वेस्ट आपके राउटर पे गई जो आपके ISP ने आपको प्रोवाइड कर रखा है। अच्छा, इस राउटर के पास एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इस लिस्ट के अंदर क्या होता है, इस लिस्ट के अंदर दो चीजें मेंटेन होती है, एक होता है डोमेन नेम, और उस डोमेन नेम के साथ दूसरी चीज जो अवेलेबल होती है यहां पे, दैट इज कॉल्ड एज द IP एड्रेस, ठीक है। अब जैसे सपोज मान लो इसमें पड़ा होगा कि जैसे सपोज मान लीजिए कि yahoo.com है, तो उसका IP एड्रेस पड़ा होगा यहाँ पे, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 202.15.10.48 सपोज, ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इनके पास पड़ा हुआ है सपोज cbsc.nic.in का IP एड्रेस भी लिखा हुआ है, सपोज मान लो यहाँ पे 200
.10.15.85 सपोज ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब क्या हुआ कि आपने लिखा ayushfitnessacademy.com, तो सबसे पहले इसने अपने इस टेबल में देखा कि भैया यहाँ पे आयुष फिटनेस अकेडमी का कहीं नाम दे रखा है, तो उसने देखा यार यहाँ तो कहीं नाम है ही नहीं। ठीक है, अब होता क्या है, ये देखो, ये डोमेन नेम और ये आईपी एड्रेस का चक्कर क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अपने कोई से भी 10 फ्रेंड्स के नाम बताओ, तो आप मुझे फटाफट बता दोगे अपने 10 फ्रेंड्स के नाम। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर सपोज मान लो मैं ये बोलूं कि ठीक है अपने उन 10 फ्रेंड्स के मोबाइल नंबर बताओ, अब वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी कि यार 10 फ्रेंड्स के नाम तो हम आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर वो तो याद नहीं कर सकते। वो नंबर्स है ना, यानी कि नंबर्स याद करने में हम लोग कमजोर हैं, लेकिन टेक्सुअल डेटा हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है कि जो इंटरनेट है, अब इंटरनेट हमें पता है कि एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट चक्कर में क्या है, इंटरनेट एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क है, और इस इंटरनेट नाम के नेटवर्क में सब जुड़े हुए, ये वेब सर्वर भी जुड़ा हुआ है, ये आपकी जो मशीन है वो भी जुड़ी हुई है इस इंटरनेट में, सब जुड़े हुए हैं इस इंटरनेट से। ठीक है जी, अब होता क्या है, इंटरनेट से जो भी कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस मिलता है। अब जैसे मान लो आपका कंप्यूटर भी इस समय इंटरनेट पे जुड़ा हुआ है, तो आपके कंप्यूटर को भी एक आईपी एड्रेस मिला होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस मिला हुआ है, मान लो 201.55.45.16 एग्जांपल के तौर पे। और ये जो GoDaddy वालों का वेब सर्वर है जहां पे आपकी वाली वेबसाइट पड़ी है, उसको भी एक आईपी एड्रेस मिला हुआ, मान लो 202.100.100.10 सपोज ये उसको आईपी एड्रेस मिला हुआ। अब होता क्या है कि अब इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर या जितने भी वेब सर्वर हैं, ठीक है, वो हर वेब सर्वर को कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। लेकिन अब यार मैं नंबर से थोड़ी ना याद रख पाऊंगा कंप्यूटर को। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया याहू वालों का आईपी एड्रेस याद रखो, गूगल वालों का आईपी एड्रेस याद रखो, जो जो वेबसाइट खोलना चाह रहे हो सबका आईपी एड्रेस याद रखो, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। लेकिन अगर आपको नाम बोला जाए तो नाम से तो आप फटाफट याद रख सकते हैं ना कि हाँ भी ये नाम है। लेकिन चक्कर है कि जब रिक्वेस्ट जाती है तो जाती तो आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट है ना। तो देखो होगा क्या कि जब हम सपोज कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे मान लो आपने इसी कंप्यूटर में मान लो yahoo.com खोला, तो रिक्वेस्ट आपके राउटर के पास गई, राउटर ने टेबल को चेक किया, टेबल में उसको दिख गया yahoo.com ये रहा, इसका आईपी एड्रेस ये रहा। तो बेसिकली इस एड्रेस पे, ये जो आईपी एड्रेस दे रखा है ना, इस पे वो रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट किस पे जाती है, जो आईपी एड्रेस है उस पे जाती है रिक्वेस्ट। ठीक जी, सो अब होगा क्या कि वो इस टेबल से उस वेबसाइट का, उस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस पता करेगा और फिर उस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा फिर यहां दिखा देगा। लेकिन अभी हुआ क्या कि भैया इसने ayushfitnessacademy.com लिखा, तो इसके राउटर ने अपने टेबल में चेक किया और उस टेबल में उसको इसका नाम कहीं नहीं मिला। अब क्या करें भाई, अब या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो अगले ने ये वेबसाइट कोई है ही नहीं, ठीक है, और सपोज मान लो या इसका नाम कुछ गलत लिख दिया उसने, कुछ ऐसा भी हो सकता है। वैसे फिलहाल हमने यहाँ नाम गलत ही डाल दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा ठीक कर देते हैं उसको। यहाँ पे ये एस एक्स्ट्रा आ गया, तो चलो हमने सही लिखा मान लो भी ये, ठीक है। सो अब राउटर ने देखा उसके टेबल में तो है नहीं है, तो अब वो क्या करे, तो वो देखेगा कि इस वेबसाइट का जो डोमेन नेम में कौन सा आ रहा है, .com आ रहा है ना, तो .com मीन्स ये कमर्शियल वेबसाइट होगी, तो ये सीधा रिक्वेस्ट कहां भेज देगा, ये वहां पे रिक्वेस्ट भेज देगा जहां पे सारी कमर्शियल वेबसाइट रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो इसने उस जगह पे रिक्वेस्ट भेज दी जहां पे सारी कमर्शियल वेबसाइट क्या होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। तो वहां से इसको कमर्शियल वेबसाइट रजिस्टर्ड होती है, वहां पे इसने रिक्वेस्ट भेज दी कि भाई मेरे को एक वेबसाइट है, ठीक है, ayushfitnessacademy.com, उसका वो दो। ऑब्वियसली जो GoDaddy वाले ने है उन्होंने ये डोमेन नेम आपको दिया है ना, तो आपका इसका मतलब ये नाम कहीं ना कहीं पे रजिस्टर्ड होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कमर्शियल वेबसाइट .com वाली सारी वेबसाइट का यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा, तो आयुष फिटनेस अकेडमीज भी होगी यहाँ पे। तो यहाँ से उसका आईपी एड्रेस मिलेगा, और वो आईपी एड्रेस फिर जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट हमने भेज दी कि भैया ये आयुष फिटनेस academy.com का आईपी एड्रेस दो, ये रिक्वेस्ट यहाँ पे गई, और इसने वहां से रिजल्ट की जब ये रिक्वेस्ट गई तो प्रोसेस होने के बाद इसने आंसर भेजा, और आंसर में क्या भेजा, आंसर में इन्होंने हमें आयुष फिटनेस अकेडमी का
वो भेज दिया, क्या नाम है, आईपी एड्रेस, तो 202.100.100.10, ठीक है। और जब ये इंफॉर्मेशन आई तो यहां पे भी इन्होंने स्टोर कर लिया कि भाई आयुष फिटनेस academy.com का, ठीक है जी, जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस क्या है हमारे पास, दैट इज 202.100.100.10। तो जब इनके पास आईपी एड्रेस आ जाएगा तो फिर अब ये जो राउटर है ये सीधा रिक्वेस्ट कहां भेज देगा, इस वाले वेब सर्वर पे, और फिर ये जो वेब पेज है वो यहां भेजेंगे राउटर के पास। फिर वो राउटर वो वेब पेज कहां किसको देगा, वो देगा वेब ब्राउजर को, क्योंकि उसमें तो सारी कोडिंग होगी। फिर ये वेब ब्राउजर सारा ट्रांसलेट करके आपको यहां पे स्क्रीन पर वो वेब पेज आपको एज इट इज दिखा देगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है उसके अंदर, ठीक। सो यहां पे लिखा है होस्ट नेम्स आर मैप्ड विद न्यूमेरिक आईपी एड्रेस। जैसे मैंने बोला हर होस्ट नेम के साथ एक न्यूमेरिक आईपी एड्रेस होगा। एंड द डोमेन नेम दैट इज शैडले पब्लिक स्कूल में हैव सपोज आईपी एड्रेस ये है। An IP address is a binary number that uniquely identifies computer and other device on the TCP network. तो याद रखना आईपी एड्रेस, जब इंटरनेट पे कोई भी डिवाइस कनेक्ट होता है तो जो आईपी एड्रेस को मिल जाता है वो आईपी एड्रेस पूरे वर्ल्ड में और किसी को उस समय नहीं मिल रहा होगा, ठीक है जी। सो होस्ट नेम्स आर मैप टू आईपी एड्रेस बाय अ सर्वर नोन एज डीएनएस, दैट इज डोमेन नेम सर्विस और डोमेन नेम सर्वर, ठीक है जी। सो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो हमें ये पता लग गया कि हर वेब सर्वर के साथ एक आईपी एड्रेस होता है, और जब भी किसी वेब सर्वर को हम ओपन करते हैं, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारा राउटर जो है उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस निकालता है और फिर उस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। सो डोमेन नेम से आईपी एड्रेस निकलवाना, इस पर्टिकुलर काम को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डोमेन नेम सर्वर और डीएनएस सर्विस, ठीक है जी। So that's all for today. Thank you very much and have a nice day.